We are solving number 4. It is actually October 2003 students. October 2003 solve कर रहे हैं, ठीक है. Trial balance of Zidane Limited have an authorized capital of rupees 10 lakh as at 31st March 2002 was as under. Simple question is students. Share capital, security premium, reserves and surplus, land and building, fixed asset, plant machinery, fixed asset, livestock. Instead of livestock ना students, you make it furniture कर लो उसको, क्योंकि अभी उसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 41 में जाता है वो, ठीक है. इंडिया इज 41, तो मेक इट वो लाइव स्टॉक को स्टूडेंट्स प्लीज मेक इट फर्नीचर. मेरी बुक में वो लाइव स्टॉक है, आई एम मेकिंग इट एज फर्नीचर. आपकी बुक का मुझे आइडिया नहीं. अगर इफ इट इज लाइव स्टॉक मेक इट फर्नीचर. फिक्स्ड एसेट में जाएगा. ग्रॉस प्रॉफिट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जनरल रिजर्व, रिजर्व इन सरप्लस, 6% डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डेटर्स, sundry debtors, trade receivable, creditors, trade payable, stock at 31st March. Stock at 31st March 2002 मतलब students closing stock. So inventories, salaries, employee benefit, director fees, employee benefit, general expenses, other expenses, cash at bank, cash equivalent, cash in hand, cash and cash equivalent, bills receivable, trade receivable, discount on issue of debentures, that is other non-current asset. Profit and loss brought forward means opening balance of P&L. Investment, non-current investment, again investment, non-current investment. Advance income tax, ये set off होगा provision for taxes सामने, we'll see that later on कैसे होगा. Of the shares allotted, 20,000 shares worth 2 lakh were allotted as fully paid to vendor from whom a running business was acquired. Of the shares allotted, so put a mark on share capital, जो first item है trial balance का, उससे related है. We'll discuss later on students. Of the debtors, 20,000 were outstanding for more than 6 months, considered good, except doubtful debt of 5,000. Put a mark on debtors students. Debtors था ना, उस पर एक मार्क करो, उस पर doubtful debt दिया, RDD मतलब. चलो ठीक है. Provision to be made for income tax 10,000. Market value of government securities 1,10,000 and that of equity shares 170. Simple adjustment. Below investment we write just market value. Auditor's fees rupees 5,000 should be provided for, मतलब outstanding. Auditor fee 5,000 should be provided for means outstanding. Included in general expenses insurance 2,000 paid for year ended September 2002. General expense पे mark कर लो student, general expense पे. Interest on debentures issued and on investment in government securities should be taken into account. No need to worry, वो करेंगे, मैं explain करूँगा what to do. Next, depreciation. Simple depreciation to be provided at 5% on original cost of machinery, 3% on original cost of land and building. Provide for dividend, prepare profit and loss statement and balance sheet. Okay, start करते हैं. पहले notes decide करते हैं कौन कौन सा notes हमें बनाना है. So notes decide करने के लिए share capital is given, reserves and surplus, long term borrowings था students, कोई debenture था ना, हाँ debentures था. शॉर्ट टर्म बोरिंग्स नहीं था. ट्रेड पेएबल, कोई क्रेडिटर्स था स्टूडेंट्स, यस, दैट बिकम्स 4. अदर करंट लायबिलिटी है 5. शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स कितना कहा था मैंने अभी, 10,000. एडवांस टैक्स कितना है, 15,000. सो शॉर्ट टर्म प्रोविजन नहीं आएगा स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज फिक्स्ड एसेट नंबर 6, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 7, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड अदर नॉन करंट एसेट 8, इन्वेंट्रीज 9, ट्रेड रिसीवेबल 10, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 11, अदर करंट एसेट आएगा स्टूडेंट्स 12. शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस नहीं है, अदर करंट एसेट 12. सो 12 नोट्स यू रिक्वायर फॉर बैलेंस शीट. स्टूडेंट्स एक कंटिंजेंट लायबिलिटी बनेगा नंबर 13. हाँ, आई विल एक्सप्लेन कहाँ पे, वो पहले किया है हमने वैसे एडजस्टमेंट. नंबर 13 होगा वो कंटिंजेंट लायबिलिटी, ठीक है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स आ जाओ P&L पे. वो 13 हो गया वहां तक. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 14, कोई अदर इनकम हमको एडजस्टमेंट में आएगा 15. कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम नॉट गिवन, कोई परचेजेस वगैरह था स्टूडेंट्स, आई डोंट थिंक सो, नहीं था. चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, नो, भूल जाओ उसको. एम्प्लॉयज बेनिफिट है 16, फाइनेंस कॉस्ट है 17, अदर एक्सपेंसेस 18. सो इन ऑल 18 नोट्स हमको बनाने हैं. इन ऑल 18 नोट्स. स्टार्ट करते हैं.
ऑथराइज शेयर कैपिटल दिया था कैसे? हाँ, वो अबाउट ट्रायल बैलेंस इट इज गिवन ना, स्टार्टिंग में दिया था एकदम। कितने रिजर्व्स दिए थे हमको? पीएनएल तो है, एक जनरल रिजर्व भी है, पीएनएल एंड जनरल रिजर्व, और कोई दूसरा नहीं है ना, जस्ट दो ही है, ठीक है। नंबर 3 लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, फोर इज ट्रेड पेएबल, क्रेडिटर्स खाली दिया है ना हमको, ये बिल्स पेएबल तो नहीं है, बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स पेएबल नहीं है, ठीक है। नंबर 5 इज अदर करंट लाइबिलिटी, सिक्स में यहाँ पे बना रहा हूँ स्टूडेंट्स, फिक्स्ड एसेट, कितने फिक्स एसेट दिया था? बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, जस्ट दो ही है ना, जस्ट 2, बिल्डिंग एंड प्लांट मशीनरी, ठीक है। नंबर 7 इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नंबर 8 other non-current asset, nine inventories, closing stock at 31st March, 10 is trade receivables, नेक्स्ट पेज पे मैं 11 बना रहा हूँ, 11 इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था, यस दोनों था, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ओके। नंबर 12 अदर करंट एसेट, number 13 was revenue from operations, fourteen is other income, sorry गड़बड़ हो गई थी, हाँ sorry 13 is contingent liability, so revenue from operation will be 14, I'm sorry, this will be 15 and this will be 16, अभी contingent liability मैं लास्ट में बना दूंगा, सुन अभी कैंसिल नहीं करता हूँ। 13 is other contingent liability, it's a hidden adjustment given in trial balance, मैंने डिस्कस किया था, मैं बनाना भूल गया। एम्प्लॉइज बेनिफिट, प्लीज 13 is contingent liability, so revenue from operation 14, मैंने यहाँ लिखा भी है 14, 15। एम्प्लॉय बेनिफिट के बाद 17 is finance cost, finally 18 is other expenses, so in all 18 notes हम लोग बना रहे हैं। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स पोस्टिंग से। शेयर कैपिटल, शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, सो 5 लाख को डिवाइड बाई 10 करेंगे तो स्टूडेंट्स 50,000 शेयर्स होगा इशूड सब्सक्राइब्ड में, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10, अमाउंट कॉलम 5 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम 50,000, रिजर्व्स एंड सरप्लस स्टूडेंट्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम
50,000. लैंड एंड बिल्डिंग कॉस्ट दिया है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट, देखो अभी कैसे लिखेंगे. पहला लैंड बिल्डिंग है, सो अगेन एक कॉलम कॉस्ट होगा, एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एक करंट ईयर डेप्रिसिएशन, एक ओपनिंग WDV. जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में भी ऐसे ही किया मैंने. लैंड एंड बिल्डिंग ब्रैकेट में दे हैव गिवन कॉस्ट 3 लाख स्टूडेंट्स, एंड सी ओपनिंग WDV ट्रायल बैलेंस में 250 है, सो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन शुड बी 50,000. पहले भी बहुत बार किया हमने स्टूडेंट्स ये एडजस्टमेंट. सेम वे प्लांट मशीनरी कॉस्ट दे से 4 लाख है ना, एंड WDV 3 लाख. सो स्टूडेंट्स प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दोनों का डिफरेंस 1 लाख. कॉस्ट दिया है तो ऐसा आपको करना पड़ेगा. सी इफ कॉस्ट इज नॉट गिवन तो हम लोग सिर्फ WDV लिखेंगे, फिर डेप्रिसिएशन माइनस करके आउटर कॉलम में लिख लेंगे. ओके, बट हियर कॉस्ट इज गिवन. अच्छा, हमने फर्नीचर को वो हाँ जो लैंड दिया, सॉरी वो लाइव स्टॉक था, हमने उसको फर्नीचर बना लिया. अब वो कॉस्ट है कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया स्टूडेंट्स, हमने उसको WDV समझ के डायरेक्टली यहाँ लिख देता हूँ मैं. ठीक है, इट्स नथिंग इज मेंशन, दैट मींस वो WDV, उसका कॉस्ट नहीं दिया. मैंने लाइव स्टॉक को फर्नीचर बना लिया. ग्रॉस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, इट विल बी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. अच्छा ये कर लो पहले. बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर, नेक्स्ट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. इट इज ये कहाँ गया, रेवेन्यू नंबर 14. ग्रॉस प्रॉफिट, how much it is given? So gross profit during the year 1,80,000. जनरल रिजर्व, रिजर्व्स इन सरप्लस 1,80,000. उसका कोई एडजस्टमेंट तो नहीं था ना? नहीं, जनरल रिजर्व का नहीं था. सो रिजर्व्स इन सरप्लस, जनरल रिजर्व 1,80,000. 6% debentures 1 lakh. Long term borrowing students, 6% debentures, long term borrowings 1 lakh. What they've said, secured by mortgage on land. So secured against land. रिडीमेबल आफ्टर 2009. ये तो ट्रायल बैलेंस का भी का 2002 का 7 साल बाकी है रिडीम होने को. अगर इफ इट इज विद इन 1 ईयर स्टूडेंट्स, आपको ऐसा क्वेश्चन अभी तक तो मैंने देखा नहीं है स्टूडेंट्स. इफ इट इज रिडीमेबल विद इन 1 ईयर, सो यू हैव टू रिकॉर्ड इट एज अदर करंट लायबिलिटी. बट ऐसा क्वेश्चन अभी तक तो आया नहीं स्टूडेंट्स आपको. ठीक है, चलो. डेटर्स 60,000. डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल स्टूडेंट्स, डेटर्स डेटर्स 60,000. देखो एक एडजस्टमेंट है. ऑफ द डेटर्स 20,000 वर आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 months. एडजस्टमेंट नंबर 2 है स्टूडेंट्स, ड्यू फॉर मोर देन 6 months 20,000. सो अदर्स विल बी 40 स्टूडेंट्स, क्योंकि टोटल डेटर्स 60 है ना. बट स्टूडेंट्स अभी RDD माइनस करना बाकी है, तो बाद में करते हैं हम. ठीक है, सो दिस टोटल इज 60. इनर कॉलम में लिख रहा हूं बिकॉज अभी RDD भी दिया है वो एडजस्टमेंट में, बाद में सॉल्व करते हैं. क्रेडिटर्स, इट इज गिवन ऑन क्रेडिट साइड. ट्रेड पेएबल 20,000. ट्रेड पेएबल 20,000. स्टॉक एट 31st March at cost or market value whichever is lower. स्टॉक मतलब इन्वेंट्रीज 31st March 2002. ट्रायल बैलेंस में 2002 का ही है ना, so it will be inventories 50,000. salaries, employee benefit. previous question में मैंने गलती से other expense में लिख दिया था. employee benefits, salaries 20,000 ना स्टूडेंट्स. स्केल करके देख लो. सैलरी 20. डायरेक्टर फीस भी एम्प्लॉय बेनिफिट में ही आएगा. डायरेक्टर फीस 9,000. जनरल एक्सपेंस 15,000. स्टूडेंट्स उसका कोई एडजस्टमेंट था, ध्यान रखना, इसलिए इनर कॉलम में. ओह
other expense, I'm sorry, general expenses, other expense. Inner column student, there is an adjustment 15,000, बाद में वो adjustment solve करते हैं. Other expense, cash at bank, cash in hand, cash and cash equivalent 30 and 2,000. cash and cash equivalent हमने नहीं बनाया क्या? बनाया था ना स्टूडेंट्स? हाँ, ये cash in hand स्टूडेंट्स. Cash in hand 2,000, cash at bank 30. Discount on issue of debentures 4,000. Other non-current asset. Discount on issue of debentures 4,000. Profit and loss brought forward, P&L opening balance, P&L opening balance. ज़्यादा स्पेस नहीं है तो सेम लाइन में मैं लिख रहा हूँ. 10,000 ओपनिंग है स्टूडेंट्स की. Investments 4% government security 95,000. Non-current investment 4% government securities amount 95,000. Investment in equity shares. Investment in equity shares. Amount 1,50,000. Advance income tax, students, other non-current asset, because it is more than provision for tax. Advance tax. How much it is? 15,15. So we have done the postings अभी तक. पूरा postings हो गया students. Okay? ये सब postings था. Next now. Adjustment of the shares allotted 20,000 shares worth 2 lakh were allotted as fully paid to vendor from whom a business was purchased. Students यहाँ पे जैसे आपको ऐसा लिखना है, of the above 20,000 shares are issued for business purchase. आपको एक चैप्टर होगा नेक्स्ट सेम में अमालगमेशन एब्जॉर्प्शन, उसमें ये बार बार आएगा. मतलब ये कंपनी ने दूसरी कंपनी का बिजनेस खरीदा है एंड इन रिटर्न दिस कंपनी हैज इश्यूड शेयर्स. दैट इज द मीनिंग. तो बस आपको वो ऐसा एक डिस्क्लोजर, एक ऐसा मेंशन करना, एक सेंटेंस लिखना है आपको स्टूडेंट्स, ऐसा और कुछ नहीं. नो सेकेंड इफेक्ट फॉर दिस एडजस्टमेंट, नो सेकेंड इफेक्ट फॉर दिस एडजस्टमेंट. दिस वाज एडजस्टमेंट नंबर ए, आपके रेफरेंस के लिए. एडजस्टमेंट ए डिस्क्लोजर है खाली, वो डिस्क्लोजर. बिलो कहाँ लिखा हमने इसको? बिलो शेयर कैपिटल. और कोई इसका सेकेंड इफेक्ट नहीं है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना. नो सेकेंड इफेक्ट फॉर दिस एडजस्टमेंट. नंबर बी ऑफ द डेटर्स, वो हमने कर लिया. ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ, कंसिडर गुड एक्सेप्ट डाउटफुल डेट्स ऑफ 5,000. सो ये डाउटफुल डेट्स मतलब आरडीडी, डेटर्स से माइनस करो. कितना का उन्होंने? 5,000 ना स्टूडेंट्स, कहाँ दिया एडजस्टमेंट? हाँ 5,000. तो स्टूडेंट्स आउटर कॉलम में 60 minus 5, 60 minus 5 is 55,000. अच्छा मैंने बिल रिसीवेबल नहीं लिखा. हाँ ट्रायल बैलेंस में बिल रिसीवेबल भी था. कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? एक बार चेक कर लेता हूँ जल्दी से, कुछ अमाउंट्स ऊपर नीचे तो नहीं हो गए. बिल रिसीवेबल वॉज ऑल्सो गिवन 20,000. इसकी जगह मैंने 20 कहीं और तो नहीं लिख दिया. कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक तो लिखा था मैंने. Here I recorded 2 and 30. नेक्स्ट उसके बाद क्या था? बिल रिसीवेबल. हाँ बिल रिसीवेबल में भूल गया था लिखना. डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स मैंने, डिबेंचर्स लिखा मैंने. अदर नॉन करंट एसेट में 4, देन 10,000 बाकी लिखा. हाँ बिल रिसीवेबल में भूल गया था लिखना स्टूडेंट्स. ओके ओके नेक्स्ट देन स्टूडेंट्स,
सेकेंड इफेक्ट आरडीडी का स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखेंगे अपना अदर एक्सपेंस में, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, अच्छा सॉरी जनरल एक्सपेंस का एडजस्टमेंट है ना आरडीडी, एक लाइन छोड़ के 5000 टू द आउटर कॉलम वी हैव एन एडजस्टमेंट रिगार्डिंग जनरल एक्सपेंस। चलो ये सिंपल था। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 10,000, बहुत बार किया अभी स्टूडेंट्स हमने। प्रोविजन फॉर टैक्स एक इफेक्ट यहाँ पे आता है, P&L स्टेटमेंट प्रोविजन फॉर टैक्स 10,000, ठीक है। सेकेंड इफेक्ट स्टूडेंट्स ये केस में हम लोग कहाँ लिख रहे हैं, अदर नॉन करंट एसेट, फॉर द सिंपल रीजन क्या है, क्योंकि एडवांस टैक्स इज मोर देन प्रोविजन फॉर टैक्स 10,000, सो आउटर कॉलम विल बी 5,000, ओके। सो दो इफेक्ट सिंपल था। मार्केट वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 1,10,000, सो ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ जस्ट मार्केट वैल्यू रुपीज 1,10,000 एंड ऑफ इक्विटी शेयर्स 1,70,000, तो बिलो जस्ट सबको लिखना है खाली मार्केट वैल्यू रुपीज 1,70,000। नो सेकेंड इफेक्ट फॉर दिस एडजस्टमेंट। ऑडिट फीस 5,000 शुड बी प्रोवाइडेड फॉर, प्रोवाइडेड मतलब आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स। सो ऑडिट फी पहले अदर एक्सपेंस में लिखो, ऑडिट फी प्रोवाइडेड फॉर कितना 5,000, अदर एक्सपेंस में लिखना स्टूडेंट्स 5,000, ऑडिट फी अदर एक्सपेंस 5,000, ठीक है, यहां लिखा आपने। सेकेंड इफेक्ट अदर करंट लायबिलिटी, ऑडिट फीस 5,000, सो दो इफेक्ट सिंपल था, आउटस्टैंडिंग है, पहले भी मैंने इसके नोट्स काफी लिखे हैं स्टूडेंट। डन। इंक्लूडेड इन जनरल एक्सपेंसेस इंश्योरेंस, तो यहाँ पे इंश्योरेंस इंक्लूडेड है, पहले उसको बाहर करो। इंश्योरेंस को इंश्योरेंस समझ के लिखो ना, वही नाम से लिखो। वाई यू आर रिकॉर्डिंग इट एज जनरल एक्सपेंस, गलती कर रहे हो स्टूडेंट्स, ठीक है। जो एक्सपेंस का नाम है उसी नाम से लिखने का। सो आउटर कॉलम कितना है वो 2,000, तो माइनस किया, बट विल रिकॉर्ड दैट इंश्योरेंस, नो डाउट अबाउट दैट, बट उसको सेपरेटली हम लोग ऐसे लिखेंगे। बट अभी वेट छोड़ते हो, कब तक पे किया, इंक्लूडेड इन जनरल एक्सपेंसेस इंश्योरेंस रुपीज 2,000 पेड फॉर ईयर एंडेड सितंबर 2002, ट्रायल बैलेंस कभी का है मार्च 2002, तो आपने 6 महीने का एक्स्ट्रा पेमेंट किया स्टूडेंट्स, 6 महीने का एक्स्ट्रा। जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसा एडजस्टमेंट मैंने किया है। एडजस्टमेंट नंबर कितना है ये, एडजस्टमेंट नंबर F है ना, एडजस्टमेंट F, इंश्योरेंस है ना 2,000 पेड टिल, कब तक का पे कर दिया आपने 30 सितंबर 2002। ट्रायल बैलेंस जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में सेम एडजस्टमेंट था स्टूडेंट्स, ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 2 का है, सो दैट मीन्स देयरफॉर इट इज प्रीपेड फॉर 6 मंथ स्टूडेंट्स, 6 महीने का प्रीपेड हो गया ना, 31 मार्च से 30 सितंबर एग्जैक्ट 6 महीना होता है। सो 6 महीना ये पूरे साल का, ईयर एंडेड लिखा है ना, सो दिस वाज फॉर द फुल ईयर। 12 मंथ्स का 2,000, तो 6 महीने का कितना होगा 1,000, सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। देखो यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ 2,000 माइनस प्रीपेड 1,000, सो आउटर कॉलम में 1,000 ये प्रीपेड है स्टूडेंट्स, दिस 1,000 इज प्रीपेड। नीचे आगे स्पेस नहीं है तो मैंने ऐसा ब्रैकेट में लिख दिया। और प्रीपेड का सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अगर हमने बनाया होगा तो, नहीं बनाया है तो कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिख देंगे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। प्रीवियस क्वेश्चन में भी था ये, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000, बैलेंस शीट में अगेंस्ट शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, बैलेंस शीट अगेंस्ट शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000, सेम एडजस्टमेंट था प्रीवियस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स। और ये एक 6 मंथ्स का क्यों प्रीपेड है, इट इज पेड फॉर ईयर एंडेड सितंबर, है ना, हमारा ट्रायल बैलेंस 31 मार्च, तो 31 मार्च से 30 सितंबर काउंट करो, 6 मंथ्स आएगा। ईयर एंडेड मतलब 12 मंथ्स, 12 मंथ्स का 2,000 है, तो 6 मंथ्स का कितना होगा 1,000, एग्जैक्ट आधा होगा ना स्टूडेंट्स। ओके, सो जनरल एक्सपेंस से माइनस किया, रिकॉर्ड किया सेपरेटली, बट उसमें कुछ प्रीपेड है, तो सेकेंड इफेक्ट हमने शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में लिखा। Interest on debentures and investment in government security should be taken into account. Students यहाँ देखो 6% डिबेंचर, पहले भी किया मैंने एडजस्टमेंट 1 लाख, सो 1 लाख इंटू 6%, सो इंटरेस्ट कितना होना चाहिए 6,000। और ट्रायल बैलेंस तो देखो डिबेंचर इश्यू कब किया था, इट वॉज इश्यूड, ऐसा कोई डेट दिया था डिबेंचर्स का,
6% डिबेंचर्स इश्यूड ऑन 1 April 2001 और ट्रायल बैलेंस 2002 का है, मतलब पूरे साल का इंटरेस्ट हमको चार्ज करना पड़ेगा. सो फाइनेंस कॉस्ट में आएगा, इसके लिए मैंने बनाया था फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, पूरे साल का इंटरेस्ट आपने अप्रैल 2001 में इशू किया है, 31 मार्च 2002, सो 1 लाख इंटू 6%, 6000, सिंपल सा एडजस्टमेंट है. सो फर्स्ट इफेक्ट फाइनेंस कॉस्ट, एडजस्टमेंट नंबर क्या है स्टूडेंट्स, ये जी है ना. फाइनेंस कॉस्ट में लिखा. सेकेंड इफेक्ट अदर करंट लाइबिलिटी, सो 6000 सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स, अदर करंट लाइबिलिटी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, हाउ मच इट इज 6000. सो एक इफेक्ट यहाँ आया नंबर 5 में, नोट नंबर 5, और एक इफेक्ट नोट नंबर 17 में. दिस वाज एडजस्टमेंट जी. सेम वे एडजस्टमेंट जी में दे आर सेइंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो उसका दो इफेक्ट स्टूडेंट्स, एक आएगा अदर इनकम में इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, एंड सेकेंड इफेक्ट आएगा अदर करंट एसेट में. दिस इज फॉर डिबेंचर है ना, एंड दिस इज फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटी. गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपके लिए इन्वेस्टमेंट है स्टूडेंट्स. सो ये देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटी 4%, बट फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करने का स्टूडेंट्स, फेस वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, देखो फेस वैल्यू इन्वेस्टमेंट का दिया था आपको ऊपर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का 1 लाख, ट्रायल बैलेंस में थर्ड लास्ट आइटम, सो 1 लाख का 4%, 1 लाख इंटू 4%, 4000 अदर इनकम, इसके लिए हमने बना के रखा है देखो, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, 1 लाख जो फेस वैल्यू है इंटू 4%, सो 4000. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटरेस्ट, ये हमने सीखा भी है, पर्सनल इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग शुड बी कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू. जो हमारा पहला चैप्टर था ना इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, हम लोग फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे ना, तो वही किया है स्टूडेंट्स, कुछ नया नहीं है. सो फर्स्ट इफेक्ट अदर इनकम, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी 4000. सेकेंड इफेक्ट अदर करंट एसेट नंबर 12, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अमाउंट 4000. ठीक है, मैंने यहाँ लिख भी दिया एंड इफेक्ट्स भी हो गया. डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड 5% ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीनरी. स्टूडेंट देखो ओरिजिनल कॉस्ट यहाँ है, सो 4 लाख का 5%, so 20,000 current year depreciation, and 3% original cost of land and building, 3 lakh, 3% 9,000. फर्नीचर के बारे में कुछ नहीं कहा है तो जाने दो. 29,000 will be depreciation total. depreciation कहाँ लिखा जाता है, P&L, depreciation amortization expense 29,000. सो एक इफेक्ट यहाँ पे आया, फिर टोटल करके सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. सिंपल था, और नेवर सेड ओरिजिनल कॉस्ट पे, तो मैंने ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज किया 3 लाख इंटू 3%, 4 लाख इंटू 5%. ठीक है. लास्ट प्रपोज डिविडेंड स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं, आप एक नोट लिख देते हैं, सो प्लीज राइट. अच्छा एक कंटिंजेंट लायबिलिटी भी था ना स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ वो कहाँ है. स्टूडेंट्स लेट मी ड्रॉ दैट नोट फर्स्ट. यहाँ स्पेस नहीं है स्टूडेंट्स, वो नंबर 13 था, मैं अभी यहाँ लिख रहा हूँ. नोट नंबर 13, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज. स्टूडेंट देखो कहाँ पे था, मैं आपको बता दूं, पहले भी किया है हमने. इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर. स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर, सेकंड लास्ट आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस, 10,000 शेयर्स ऑफ 25 ईच, 15 पेड अप. जब भी आप पार्टली पेड शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो आप लिखते हो ना इन्वेस्टमेंट इन पार्टली पेड शेयर्स. ठीक है, 25 फेस वैल्यू है, आपने अभी तक कितना पे किया है, 15 रुपया. तो फ्यूचर में कंपनी, ये कंपनी ने दूसरा कंपनी का शेयर्स लिया, टिल नाउ दैट कंपनी इज कॉल्ड 15, तो फ्यूचर में डेफिनेटली कंपनी 10 मांगेगी ना. इन्वेस्टमेंट इन पार्टली पेड इक्विटी शेयर्स. बस ऐसा आपको एक सेंटेंस लिखना है. कितने शेयर्स हैं, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज 1 लाख, एंड नो सेकेंड इफेक्ट फॉर दिस. ये ना बैलेंस शीट में जाएगा
ना ट्रायल बोर्ड P&L में जाएगा, बस ऐसा। पहले भी हमने किया है 4-5 टाइम दिस टाइप ऑफ एडजस्टमेंट। और कुछ बचा स्टूडेंट्स? नहीं ना। प्रपोज डिविडेंड, फॉर दैट वी राइट नोट। प्रपोज्ड डिविडेंड, सॉरी, कितना का? 8%। सो 8% किसका? शेयर कैपिटल का, 5 लाख का। सो 5 लाख इंटू 8% इज ₹40,000 एंड नो सेकेंड इफेक्ट। ये यहीं रहेगा बस, इट वोंट गो टू बैलेंस शीट और P&L। स्टूडेंट्स सारे एडजस्टमेंट हमने कवर कर लिए, देयर इज नथिंग एल्स। अभी इसको क्लोज आप करना स्टूडेंट्स। हाँ, पहला क्या क्लोज करने का? नोट्स विच आर रिलेटेड टू P&L। सो 14, 15, 16, 17, 18 राइट इन P&L। P&L को क्लोज करो, दैट विल गो टू देन रिजर्व्स, यहाँ पे ऐड होगा P&L में। देन बाकी सब नोट्स क्लोज कर देना। खाली मैं ये क्लोज कर देता हूँ स्टूडेंट्स, ये आपको बताऊँ, ऐसे क्लोज कर देता हूँ मैं। ऐसा कर सकते हैं ना, ओपनिंग WDV माइनस दिस, ओपनिंग WDV माइनस दिस, ओपनिंग माइनस दिस, और एल्स मैंने ऐसा बताया 3 लाख माइनस दिस माइनस दिस। बोथ द वे आंसर आपको सेम आएगा, 3 लाख माइनस 50 माइनस 9, सो इट इज हाउ मच? 241। और 250 में से भी 9 माइनस करो तो भी 241 ही आएगा ना स्टूडेंट्स, बोथ द वेज। 3 लाख माइनस 20 विल बी 280, और एल्स 4 लाख माइनस 1 लाख इज 3 लाख, 3 लाख माइनस 20 तो भी 280 आएगा। 20 माइनस 0, ये 20 ही रहेगा फर्नीचर। सो मैंने खाली फिक्स एसेट को आपको क्लोज करके बताया, बाकी आप खुद सब क्लोज कर लेना। 241, 280 एंड 20, इट इज 541। रेस्ट ऑल नोट्स आप क्लोज करना स्टूडेंट्स। ओके, इंशाल्लाह टैली हो जाएगा, कोई डिफिकल्ट एडजस्टमेंट तो नहीं था इसमें। We are solving now October 2017। 8 मार्क्स के लिए पूछा था स्टूडेंट्स, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा, एकदम आसान है। Only income statement. Prepare vertical profit and loss statement for year ended March 2017 of Mars Agro Limited. Interest on investment, other income. Interest on investment is other income. Sales, revenue from operations. Opening stock of material, material consumed में. Purchase of raw material consumed. Cost of material consumed, sorry. Employees benefit expense. Audit fee, other expense. Sales return, sales से minus कर लेंगे. Interest on investment was receivable 30,000. Interest on investment receivable मतलब स्टूडेंट्स इंटरेस्ट में ऐड करेंगे एंड सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा, बट स्टूडेंट्स उन्होंने बैलेंस शीट पूछा ही नहीं है हमको। अच्छी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, सो माइनस होगा ये मटेरियल्स में से, ओके, एंड सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा। आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी में ऐड होगा, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा। तो हमको अभी डिसाइड करना है कितने स्टेटमेंट्स, वो कितना नहीं। स्टूडेंट्स ये वर्किंग नोट मत देखना, दिस वाज ये बोनस का वर्किंग, फाइनल अकाउंट से मैंने एक क्वेश्चन किया था ये बोनस का, सो प्लीज डोंट रेफर दिस। हाँ चलो मैं रवि कर देता हूँ जल्दी से। दिस वर्किंग इज नॉट रिलेटेड, लेट इट बी, दिस वर्किंग इज नॉट रिलेटेड टू, टाइम जाएगा, टू दिस क्वेश्चन। ये बोनस का मैंने क्वेश्चन किया था फाइनल अकाउंट्स में स्टूडेंट्स, सो उसके लिए किया था मैंने वर्किंग, ओके। सो नाउ वी स्टार्ट विथ कौन कौन सा हमको स्टेटमेंट बनाना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बनाना है, यस। सेल्स दिया है, उसका रिटर्न भी दिया है। अदर इनकम बनाना है, यस, नंबर 2। कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स बनाना है स्टूडेंट्स, नंबर 3। परचेज और स्टॉक इन ट्रेड तो नहीं है। चेंजेस इन्वेंट्रीज, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, WIP नहीं दिया है। एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस है स्टूडेंट्स, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस था बट एक ही है ना, तो चलो उसका शेड्यूल नहीं बनाते हैं, डायरेक्टली लिखते हैं। फाइनेंस कॉस्ट है, इंटरेस्ट पेड नहीं था स्टूडेंट्स। अदर एक्सपेंस है, अदर डेप्रिसिएशन भी नहीं है, अदर एक्सपेंसेस स्टूडेंट्स 4। तो 4 वर्किंग नोट में हो जाएगा हमारा। सिंपल सा क्वेश्चन एकदम, 8 मार्क्स के लिए पूछा था स्टूडेंट्स। Number 1, revenue from operation.
to other income. Number 3, cost of material consumed. Last number 4, other expense. और कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है. ओके, स्टार्ट करते हैं पोस्टिंग से. Interest on investment, as students, interest on investment is other income. Interest on investment. Interest on investment, how much it is given, students? 1 lakh. Next, sales revenue from operation. How much it is given? 450. Next, opening stock of material. Cost of materials consumed. Opening stock of material. Cost of materials consumed. Opening stock कितना दिया उन्होंने? 60,000. 60. Purchase of materials. 250. एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस स्टूडेंट्स में डायरेक्टली पीएनएल में लिख रहा हूँ. प्लीज डोंट रेफर दिस वर्किंग, वो बोनस का वर्किंग था. एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस ये है, कितना दिया है? 40,000. सो अगेंस्ट एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 40,000. वी हैव नॉट ड्रॉन शेड्यूल फॉर दैट बिकॉज ओके एडजस्टमेंट ने डायरेक्टली लिख लिया. ऑडिट फीस, अदर एक्सपेंस. How much audit fee is given? 10,000. Sales return minus from sales. Sales return कितना दिया? 20,000. So 450 minus 20 करेंगे तो 4,30,000. Okay? Interest on investment receivable. Receivable मतलब स्टूडेंट्स ऐड होगा प्लस receivable. सेकेंड इफेक्ट अदर करंट एसेट जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, बट हमने बैलेंस शीट प्रीवियस क्वेश्चन में भी नहीं बनाई थी, इसमें भी पूछा नहीं है. दे वाज ओनली पीएनएल. 30,000. 30. सो 1 लाख प्लस 30. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल. स्टूडेंट्स क्लोजिंग स्टॉक हम लोग माइनस करते हैं. क्लियरली मटेरियल्स का क्लोजिंग स्टॉक है. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स हाउ मच कितना था हमने? 40. 60 प्लस 310 माइनस 40 करेंगे तो 270 आएगा स्टूडेंट्स. ठीक है, सिंपल था. लास्ट फाइनली ऑडिट फी आउटस्टैंडिंग. सो प्लस आउटस्टैंडिंग. सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट, बट वी डोंट हैव बैलेंस शीट हियर. एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा था. आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी 20,000. सो 20 प्लस 10 विल बी 30. और ये तो सेम रहेगा 2,70,000. सो टोटल भी हो गया. अब पीएनएल में लिख लेते हैं. 4,30,000 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. दिस इज 130. सो 430 प्लस 130 विल बी 5,60,000. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ये था 2,70,000. अदर एक्सपेंसेस 30. 270 प्लस 30 is 3 लाख. 3,40,000 हो जाएगा टोटल एक्सपेंस. सो 560 माइनस 340. टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस. इट कम्स टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,20,000. स्टूडेंट्स क्या उन्होंने प्रोविजन फॉर टैक्स हमको कहा था? कुछ भी नहीं है, ये कुछ नहीं दिया. तो दिस इज द फाइनल आंसर. ओके, सिंपल हो गया, बहुत आसान. ये प्लीज डोंट रेफर दिस. ये मैंने कोई दूसरा क्वेश्चन किया था बोनस, तो उसका वर्किंग इस पे बनाया था. दिस इज नॉट रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन. ये मत रेफर करना. दिस इज द आंसर. ओके, और ये इसके नोट्स. October 2016.
following the extract of trial balance of Satya Limited as on 31st March 16, profit and loss account opening credit में दिया है 25 लाख, एडवांस इनकम टैक्स फॉर 14-15 स्टूडेंट्स पास्ट ईयर होगा बिकॉज ट्रायल बैलेंस इज फॉर 31st March 16, है ना. इनकम टैक्स प्रोविजन टू बी मेड फॉर advance income tax provision for income tax 14-15 again means past year. Advance income tax 15-16 means current year. Net profit before tax for year ended 31st March 16. 31st March 16 means current year 6 lakh. Income tax provision to be made for the year 15-16 1,40,000. No effect is given to income tax assessment which is completed for 2014-15 resulting in gross demand of rupees 1,50,000. You are required to show how relevant items will appear in statement of profit and loss of Satya for year ended 31st March 16 and also in balance sheet as on 31st March 16. Students छोटा सा वर्किंग पूछा है उन्होंने इनकम टैक्स असेसमेंट का. ओके सो जब भी इनकम टैक्स असेसमेंट एडजस्टमेंट होता है तो व्हाट वी डू स्टूडेंट्स, ग्रॉस डिमांड माइनस एडवांस टैक्स ऑफ पास्ट ईयर, यहाँ पे पास्ट ईयर है 14-15 एंड देन gross demand minus provision for tax again of past year 14-15. So we have to decide this. Gross demand adjustment number 3 resulting in a gross demand of 1,50,000. तो ये gross demand हमको दिया है 1,50,000, ये हमें दिया हुआ है माइनस एडवांस टैक्स देखो 14-15 का given in that trial balance 1,20,000 और प्रोविजन फॉर टैक्स कितना दिया था 14-15 का 1,70,000. सो दिस इज 30 एंड दिस इज 20. ये बैलेंस शीट में जाएगा, ये P&L में जाएगा. ओके क्रॉस डिमांड इतना पे करना था, वी हैव पेड 120, सो दिस इज पेएबल, सो दिस गोज टू अदर करंट लायबिलिटी. 150 इज द डिमांड. प्रोविजन अल्हम्दुलिल्लाह, प्रोविजन 1,70,000. सो हमने एक्सेस प्रोविजन किया था, सो दिस इज एक्सेस प्रोविजन, दिस विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. ओके ये इक्वेशन हमने बना लिया एंड देन दे हैव आस्क्ड कि ये सब कैसा इफेक्ट्स P&L में कैसा जाएगा एंड बैलेंस शीट में कैसा जाएगा. तो स्टूडेंट्स कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बड़ा आसान है. सो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर ईयर एंडेड 31st March 16 करंट ईयर, और मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ एक्सट्रैक्ट, दैट मीन्स ये फुल फ्लेज P&L नहीं है स्टूडेंट्स, छोटा सा पार्ट बना रहे हैं उसका. ठीक है एंड स्टूडेंट्स सेम वे आई विल राइट बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 16 जो करंट ईयर है. अगेन एक्सट्रैक्ट नॉट द एंटायर बैलेंस शीट, उसका एक छोटा सा पार्ट बना रहे हैं हम लोग. ठीक है नाउ स्टूडेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ. डोंट रेफर द आंसर्स. ये कोई दूसरा क्वेश्चन था. सो हियर वी हैव, दे हैव नॉट गिवन दीज डिटेल्स, ये रेवेन्यू वगैरह ये कुछ नहीं दिया है स्टूडेंट, दे हैव नॉट गिवन दीज डिटेल्स. तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दिस इज गिवन टू अस स्टूडेंट्स. एडजस्टमेंट नंबर 1, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर ईयर एंडेड 31st March 16 is 6 lakh. So we have they have given us profit before tax. कितना दिया है हमको 6 lakh. That is the reason I recorded extract. Extract मतलब entire P&L नहीं बना रहे हैं, छोटा सा उसका एक हेडिंग है. फिर स्टूडेंट्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद क्या होता है, इनकम टैक्स एक्सपेंस, वो हेडिंग होती है स्टूडेंट्स. सो आई विल राइट इनकम टैक्स एक्सपेंस. ओके ये लिखा हमने इनकम टैक्स एक्सपेंस. ओके नाउ स्टूडेंट्स करंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स होता है, जैसे यहाँ पे था देखो provision for tax for current year, excess short provision. So students provision for tax for which year, short में मैंने लिखा current year, and this was students ये हमने find excess, ये excess provision for tax. Okay current year provision for tax students दिया है देखो. Adjustment number 2, income tax provision to be made for 15-16 1,40,000. So 1,40,000 and excess provision हमको कितना आया था स्टूडेंट्स 20,000.
ऐसा ही था. ओके, नाउ स्टूडेंट्स 6 लाख प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस 140 प्रोविजन फॉर टैक्स और एक्सेस हम लोग ऐड करते थे. सो फाइनल आंसर विल बी 4,80,000. 4,80,000 हम लोग ऐसा लिखते थे. प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड. सो दिस इज व्हाट दे आस्क्ड स्टूडेंट्स. पूरा पीएनएल नहीं पूछा है. प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड, तो प्रॉफिट है एक्चुअली ये. प्रॉफिट फॉर द पीरियड. ओके, एंड देन दे हैव आस्क्ड बैलेंस शीट. नाउ बैलेंस शीट में स्टूडेंट्स शेयर कैपिटल तो कुछ दिया नहीं है. रिजर्व्स, हाँ रिजर्व्स हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स. रिजर्व्स इन सरप्लस. और क्या दिया रिजर्व इन सरप्लस के अलावा? ये स्टूडेंट्स अदर करंट लायबिलिटी में जाएगा और एडवांस टैक्स और इनकम टैक्स एडजस्ट होगा. सो अदर करंट लायबिलिटी आएगा एक. बैलेंस शीट देयर इज नो शेयर कैपिटल. रिजर्व्स है, रिजर्व्स आ जाएगा. अदर करंट लायबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन. सो अदर करंट लायबिलिटी. दिस तो आई नो 30,000, ये मुझे पता है तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ. ओके, एंड नेक्स्ट व्हाट एल्स होगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजन. ये कैसे आएगा स्टूडेंट्स? पहले हमने बहुत बार किया है. शॉर्ट टर्म प्रोविजन स्टूडेंट्स यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. प्रोविजन फॉर टैक्स लेस एडवांस टैक्स. कौन से साल का? करंट ईयर का. पास्ट ईयर का तो हमने लिख लिया. तो करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स इज 1,40,000. ये हमको दिया था उन्होंने. और एडवांस टैक्स भी दिया है, देखो स्टूडेंट्स वो टेबल में 1,30,000 ट्रायल बैलेंस में. सो शॉर्ट टर्म प्रोविजन विल बी 10,000. सो दैट्स व्हाट आई एम रिकॉर्डिंग हियर 10,000. सेम वे हम लोग रिजर्व्स का भी बैलेंस डिसाइड कर सकते हैं. एक्चुअली रिजर्व्स का पहले लिखना था, अभी मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में. रिजर्व्स एंड सरप्लस. स्टूडेंट्स देखो रिजर्व एंड सरप्लस में हम लोग कैसा करते थे. मैं आपको पेज रन करूँ. P&L ओपनिंग बैलेंस, ये दूसरा कोई क्वेश्चन है. ओपनिंग प्लस नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर माइनस इंटरिम डिविडेंड, कोई भी एडजस्ट या ट्रांसफर टू रिजर्व, सेम चीज में लिख रहा हूँ. प्रॉफिट लॉस ओपनिंग बैलेंस, दिस इज गिवन स्टूडेंट. देखो मत दिया है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपनिंग 25 लाख. नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अभी हमने देखो यहाँ फाइंड किया था 4,80,000 और कोई एडजस्टमेंट नहीं है. नो इंटरिम डिविडेंड, नो ट्रांसफर टू रिजर्व. सो फाइनल आंसर इज 29,80,000. 2980. So we got reserves also 29,80,000. This is what they was. No need to take any totals. टोटल लेना कोई जरूरी नहीं है. फॉर द सिंपल रीजन दिस इज एक्सट्रैक्ट. कोई हमको बैलेंस शीट टैली नहीं करनी है. दिस इज व्हाट दे हैड आस्क्ड. कितने मार्क्स के लिए? 8 मार्क्स के लिए पूछा था. एकदम इजी है, सिंपल है. ठीक है. दिस इज अ वर्किंग, ये भी वर्किंग है. ये हमारा फेयर आंसर है. प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट. Again students, October 2016, show the presentation of the following items under appropriate notes to accounts forming part of balance sheet of Mehul Limited as on 31st March 16. General reserve, debenture redemption reserve, profit and loss account, net profit for before transfers and appropriation, transfer to general reserve, transfer to debenture redemption reserve, proposed equity dividend and interim dividend. Students, all items are related to reserves and surplus. तो शॉर्ट में उन्होंने सिर्फ reserves and surplus ही पूछा है and nothing else. Again October 2016 है. ये भी October 2016 का. This was for 8 marks, this was for 7 marks. Okay. पहले डिबेंचर रिडम्पशन फंड लिखते हैं बिकॉज दिस इज नॉन डिविजिबल. डिबेंचर redemption fund, how much it is given? Debenture redemption fund 10 lakhs. Okay, then लिखते हैं general reserve.
जनरल रिजर्व कितना दिया, ओपनिंग बैलेंस 50 लाख। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपनिंग बैलेंस। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस opening balance. How much profit and loss opening given? 30 lakhs. Net profit for the year. So net profit for the year हम लोग ऐड करते थे। Net profit for the year, how much it is given students? 40 lakh, 40. ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, सो पीएनएल से माइनस होगा, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 10 लाख, एंड ऐड टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस 10 lakh. Same way, transfer to debenture redemption fund. So minus from P&L कितना डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व या रिडम्पशन फंड, चलो मैंने फंड लिख दिया, वहां पे रिजर्व टर्म है 5 लाख। सो ऐड ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस 5 lakh. Propose equity dividend students, we just write a note, आपको याद होगा, note proposed equity dividend rupees 4 lakh. And finally interim dividend we subtract from P&L. How much interim dividend given? 1 lakh. That's all. There is nothing else. ये उन्होंने पूछा था स्टूडेंट्स, एकदम सिंपल। 30 लाख, 40 लाख, minus 10 lakh, minus 5 lakh, minus 1 lakh. So 54 lakh. 50 lakh plus 10 lakh will be 60 lakh. 10 lakh plus 5 lakh will be 15 lakh. हो गया, and there is nothing else. ये उन्होंने पूछा था for 7 marks. ठीक है, स्टूडेंट्स वी आर सॉल्विंग नाउ अप्रैल 2006 क्वेश्चन नंबर 9 है मेरी बुक में, वो किया है, नंबर 10 कर रहे हैं। देयर आर 2 क्वेश्चंस अंडर अप्रैल 2006। फर्स्ट वाला तो किया है, वो ट्रायल पीएनएल एंड बैलेंस शीट बनाना था। सेकंड वाला छोटा सा क्वेश्चन है 4-5 लाइंस का। अ कंपनी हैज द फॉलोइंग पोजीशन फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2005, अप्रैल 2006 है स्टूडेंट्स। प्रोविजन फॉर टैक्स क्रेडिट 5 लाख, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स डेबिट 4,75,000, tax deducted at source 20,000. Okay, what they asked, assessment of companies completed and tax liabilities settled at 5,10,000. पास जर्नल एंट्री स्टूडेंट्स, उन्होंने पास जर्नल एंट्रीज पूछा। आई विल रिकॉर्ड एंट्री स्टूडेंट्स, बट मैं आपको पहले वो इक्वेशन से बता देता हूँ। व्हाट वी डू स्टूडेंट्स, ऐसे केस में हम लोग ऐसा लिखते हैं ना, ग्रॉस डिमांड माइनस एडवांस टैक्स, और स्टूडेंट्स यहाँ पे टैक्स भी था ना, टीडीएस भी था, तो माइनस टीडीएस ऐसे करते थे हम लोग। आई विल रिकॉर्ड एंट्री, मैं भी करता हूँ, एंड माइनस प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, ग्रॉस डिमांड 5,10,000, प्रोविजन फॉर टैक्स स्टूडेंट्स कितना दिया हमको, 5 लाख। एडवांस टैक्स कितना दिया था, 4,75,000, and how much is TDS given, 20,000। पहला इक्वेशन का इफेक्ट बैलेंस शीट में, सेकेंड इक्वेशन का इफेक्ट पीएनएल में, ऐसे ही हमने सीखा है स्टूडेंट। ओके, नाउ
510, sorry, 475 and 20, so 15,000. 510 they are asking you have paid 495, तो ये स्टिल पेएबल है, ये कहाँ जाएगा, अदर करंट लाइबिलिटी. 510 प्रोविजन फॉर टैक्स स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट प्रोविजन होगा 10,000, ये पीएनएल में जाएगा शॉर्ट प्रोविजन. कहाँ लिखेंगे इसको, प्रॉफिट एंड लॉस में ना, ऐसा हम लोग करते थे. बट दे वाज एंट्री, सो नो नीड टू वरी, एंट्री भी रिकॉर्ड करते हैं स्टूडेंट्स. ओके, नाउ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखो स्टूडेंट्स. ये देखो स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट प्रोविजन आया ना. शॉर्ट मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस करते हैं. इफ यू रिमेंबर मैंने देखो नेगेटिव साइन लिखा भी है, माइनस. शॉर्ट प्रोविजन इज डिडक्टेड. इनकम स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है. माइनस करना, किसी चीज को माइनस करना मतलब दैट मीन्स यू आर ट्रीटिंग इट एज एन एक्सपेंस. सो प्रॉफिट एंड लॉस में आप एक्सपेंस लिख रहे हो, तो जनरल एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. एक्सपेंस डेबिट होता है ना स्टूडेंट्स, टू प्रोविजन फॉर टैक्स 10,000. मैंने इसका इफेक्ट दिया 10,000 आपको समझाने के लिए. मैंने से शॉर्ट प्रोविजन इज डिडक्टेड, तो दैट मींस यू आर ट्रीटिंग इट एज एक्सपेंस. प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में एक्सपेंस ही माइनस होते हैं ना, सो दिस इज एन एक्सपेंस फॉर द कंपनी. और यहाँ लिखा भी देखो, इनकम टैक्स एक्सपेंस, सो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होगा. दैट्स व्हाट आई हैव डन, टू प्रोविजन फॉर टैक्स. ठीक है, बट उन्होंने स्टूडेंट्स डिमांड कितने का किया था, 5,10,000. सो जनरल एंट्री विल बी प्रोविजन फॉर टैक्स, क्योंकि ऑलरेडी तो मैंने यहाँ पे कितना प्रोविजन फॉर टैक्स 5 लाख लिखा है ना. सो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट. सो अभी मैं लिखूंगा 5,10,000 जितने का डिमांड हुआ स्टूडेंट्स. ओके, और इसको किसके सामने हमने एडजस्ट किया, एडवांस टैक्स. एडवांस टैक्स स्टूडेंट्स एसेट होता है, इफ यू रिमेंबर अदर नॉन करंट एसेट में लिखते थे इसको. बट अभी आप इसको एडजस्ट कर रहे हो तो एसेट डेबिट बैलेंस होता है. एडजस्ट करोगे तो क्रेडिट करना पड़ेगा. सो टू एडवांस टैक्स अकाउंट कितना है स्टूडेंट्स, वो 4,75,000. ठीक है, सेम वे टीडीएस, ये आपके लिए एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, बट आपने एडजस्ट कर दिया उसको, सो दैट मीन्स क्रेडिट करो 20,000. ओके स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स ये क्या आया था हमको, अदर करंट लाइबिलिटी. इसके अदर करंट लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट करना पड़ेगा. ओके, सो व्हाट विल राइट, टैक्स पेएबल. और मैं वहां लिखता भी था यहाँ पे कभी कभी टैक्स पेएबल. सो टैक्स पेएबल अकाउंट, so this will be 15,000. so these are the two entries which they have asked. ये इक्वेशन ऐसा हम लोग करते थे स्टूडेंट, हमने कभी एंट्री रिकॉर्ड नहीं किया. ये इक्वेशन से समझ जाते थे कहाँ पे इफेक्ट जाएगा. ओके, एंड इफ दे आस्क जनरल एंट्री तो सिंपल है, शॉर्ट प्रोविजन यहाँ माइनस हो रहा है, इट इज रिकॉर्डेड अंडर एक्सपेंस, तो दैट मीन्स एक्सपेंस है तो पीएनएल डेबिट करने का, टू प्रोविजन फॉर टैक्स. डिमांड कितने का, 5,10,000. सो दिस एंटायर डिमांड विल बी डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर टैक्स, क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखा है ना आपकी बुक्स में स्टूडेंट्स. तो इसके लिए प्रोविजन फॉर टैक्स को डेबिट किया 510. एडजस्ट किसके सामने हो रहा है, एडवांस टैक्स और टीडीएस, बोथ आर एसेट. दोनों को एडजस्ट कर रहे हो, एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस, एडजस्ट किया तो उसको क्रेडिट कर दो. और ये जो है ना, ये आपका 15,000 टैक्स पेएबल. मतलब स्टूडेंट्स मैंने क्या किया है, ग्रॉस डिमांड डेबिट हो गया, मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स डेबिट, टू एडवांस टैक्स, टू डीटीएस, टू अदर करंट लायबिलिटी, दैट मीन्स टू टैक्स पेएबल. So this is the entry for the first equation you can say. But पहले ये रिकॉर्ड करने का, this one, then this one. तभी तो 510 हुआ. You have already created provision for 5 लाख, बट वो लोग 510 मांग रहे हैं ना स्टूडेंट्स. इसके लिए पहले प्रोविजन फॉर टैक्स को और क्रेडिट कर लिया 10,000 से, then you recorded this entry. So this was asked. Again very simple था एकदम, और कोई ऐसा छोटा क्वेश्चन तो शायद नहीं है स्टूडेंट्स. We have done almost now all the questions.